Hello students, welcome back. Children, in the last lecture we have discussed about the first part of the chapter inflation. In this chapter children, that's going to be almost like a last topic for our third semester. It's going to be inflation part 2. Now the question arises like sir, we have already studied about the part 1 in inflation, then what will be exactly studying in part 2? Children, this topic is going to cover what is known as measures to control inflation. We all know that inflation is a very serious economic phenomenon which actually affects the lives of the common people, especially the poor people. Now, we have to find certain solutions or measures to control this economic problem that we face, children, because it is very necessary that we control the inflation at an appropriate level before it becomes uncontrolled. Children, if inflation becomes uncontrolled, then it is known as hyperinflation. Acha, abhi we all are also aware that inflation takes place because there is disequilibrium between aggregate demand and aggregate supply. Acha, so what would actually happen, children, is this: it can be controlled by either managing the demand or managing the supply. Disequilibrium का मीनिंग तो हम सब लोगों को पता है कि लाइक whenever demand is more, if supply is less, it can finally result into inflation, children. So control of inflation will require certain steps, children, which come either from monetary authorities, the fiscal authorities, or there are some other direct measures which are implemented by the government. So children, today in detail we will try to discuss the monetary measures, the fiscal measures, as well as we'll also discuss some other measures which are also known as direct measures which are implemented by the government. Okay, now let's begin with the first part that we have, children, here. That's what is called as the monetary measures. Okay, first of all, let me clearly distinguish between what are monetary measures and what are fiscal measures. Children, monetary measures are those measures which are initiated by the Reserve Bank of India or the monetary authority in the country, children. It's known as monetary policy. When it comes to the fiscal policy, children, that fiscal policy is like it includes all the measures which are initiated by the government of the concerned country. Acha. The monetary measures are clearly related to the money supply in the market. Acha. Suppose, children, by any chances, if there is an increase in money supply, what do I say, children? By any chances, there is any kind of increase in money supply, but there is no corresponding increase in the supply of goods and services. क्या बोला देखो हाँ बच्चे लोग कि मार्केट में से पैसा बढ़ते जा रहा है लेकिन मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीज नहीं हो रहा है बच्चे लोग. हाँ, तो इन दिस सिचुएशन what is going to result, children? There is going to be some excess demand in the market, and that excess demand, children, is going to result into inflation. So monetary authorities क्या करते हैं, children? They can increase the cost of credit. What are they going to do? They are going to increase the cost of credit. Cost of credit का मतलब क्या होता है, children? It is the rate at which you borrow money from the banks. And if the rates of interest are raised by the banks, then automatically what is going to happen? The money supply is going to decrease. और जैसे ही मनी सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो डिमांड होता है ना, एक्सेस डिमांड, इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली कम इन कंट्रोल, चिल्ड्रन. अच्छा, एट द सेम टाइम, चिल्ड्रन, द मॉनेटरी मेजर्स दे ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. अच्छा, दे ट्राई टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कंसर्न पीपल. It could be the farmers, the producers. Okay, now, बच्चों, जो भी methods रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, नाउ दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट मेथड्स. दे आर नोन एज क्वांटिटेटिव मेथड्स, चिल्ड्रन. एक तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स, और एक दूसरा होता है, चिल्ड्रन, वी कॉल देम एज क्वालिटेटिव मेथड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let's have a look at what are the quantitative methods that are adopted by the Reserve Bank of India. Children, the first one,
that is known as the bank rate. Children, bank rate, what exactly you might mean by the bank rate? अच्छा, suppose यहाँ पे they have given a simple definition, children, that bank rate is the rate at which the central bank lends money to the member banks. मतलब यहाँ पे बच्चे लोग, suppose we have the apex banking institution with us, and that is nothing but, children, the Reserve Bank of India. अच्छा, Reserve Bank of India के नीचे we have got the n number of banks which come up, na children. It could be the commercial banks, right? We have got the cooperative credit societies or cooperative banks होते, children. All those together they constitute the banking sector. तो चलो, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करती है, उस रेट को हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे बैंक रेट. अच्छा, लेट मी टेल यू इन डिटेल, चिल्ड्रन, समथिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस बैंक रेट. ओके, ये रहेगा अपना बच्चे लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन, एज आई सेड, इट्स द apex banking institution in our country, and every country would actually have a similar apex banking authority or the monetary authority, children, we call it as. अच्छा, अभी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स. अभी वो कमर्शियल बैंक्स पैसा बोरो करते हैं, किससे? आरबीआई से. कैसे बोरो किया जाता है वो देखो. अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव हर्ड अबाउट व्हाट्स नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट? अच्छा, ये होते हैं चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अच्छा, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? मिस्टर ए सेलिंग द गुड्स टू मिस्टर बी. मिस्टर बी बोलता है कि मैं 3 महीने के बाद तुम्हारा पैसा पे कर दूंगा. मिस्टर ए बोलता है कि लाइक हाउ शुड आई ट्रस्ट यू. तो मिस्टर ए इज गोइंग टू ड्रॉ अ बिल एंड मिस्टर बी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट बिल. अच्छा, तो दैट बिल इज नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलो किसके पास पड़ा हुआ रहेगा? मिस्टर ए के पास. अच्छा, ही इज गोइंग टू गेट द मनी आफ्टर 3 months. कभी इमीडिएटली अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मिस्टर ए क्या कर सकता है? वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज उठा के किसी कमर्शियल बैंक के पास जाने का और उनको रिक्वेस्ट करने का कि लाइक प्लीज ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर दो? डिस्काउंट कर दो. बोलते उसको क्या बोलने का? डिस्काउंटिंग कर दो. अच्छा, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? वो बिल अपने पास रखेगा और फिर पैसा देता है किसको? मिस्टर ए को. बट लोग, देयर आर सो मेनी पीपल हु कम टू द कमर्शियल बैंक्स टू डिस्काउंट दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो ऐसी सिचुएशंस में कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे बिल्स आते हैं, तो कमर्शियल बैंक को भी तो पैसे की जरूरत होती है. तो ऐसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास. और फिर आरबीआई को रिक्वेस्ट किया जाता है कि लाइक ये जो बिल हमने डिस्काउंट किया, आप प्लीज इसको रीडिस्काउंट कर दो. तो आरबीआई वो बिल अपने पास रखती है और फिर कमर्शियल बैंक को उसके अगेंस्ट में पैसा देती है. लेकिन अगर पैसा दिया है तो चलो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा. वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों जो आरबीआई चार्ज करेगी कमर्शियल बैंक से, उसको बुलाया जाता है यहाँ पे बैंक रेट. सो माय डेफिनेशन गोज लाइक दिस, चिल्ड्रन, लाइक बैंक रेट इज दैट रेट एट विच Reserve Bank of India rediscounts the bills of exchange which are already discounted by the commercial banks. It's like अगर आरबीआई ने बच्चों 1 लाख का बिल रखा और कमर्शियल बैंक को सिर्फ 95,000 रुपीज दे दिए, तो ऐसी सिचुएशन में चिल्ड्रन वी कुड से कि लाइक बैंक रेट कितना दिख रहा है यहाँ पे? 5%. तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? उसमें अपना 2% का मार्जिन इंक्लूड करके फिर सब लाइक लोगों को पैसा लोन देने के लिए यूज करता है. दे माइट लेंड इट एट 7 to 8%. लेकिन वहीं पे अगर आरबीआई ने 1 लाख के बिल के अगेंस्ट में सिर्फ 90,000 रुपीज दे दिए, तो वहां पे बच्चों लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिखेगा? 10%. और अगर ये 10% है तो हो सकता है कि कमर्शियल बैंक वही पैसा बाद में लोगों को फॉरवर्ड करेगा. कितने में? 12% में. तो आपने नोटिस किया कि बैंक रेट की वजह से मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस होता है. तो इट इज एक्चुअली लाइक दिस, चिल्ड्रन, कि लाइक अभी आपको क्या लगता है कि 7% rate of interest and another one is 12% rate of interest. In which situation more people are going to borrow money? 7%. अच्छा, if they borrow money, they keep on spending. Market का demand is going to rise. That can result into inflation. तो ऐसी situations में RBI क्या करते हैं? बैंक रेट को बढ़ा देते हैं. जैसे 5% का कितना किया? 10%. For an example, I'm telling. It doesn't increase by such a great magnitude. बेसिक पॉइंट से बढ़ाया जाता है बच्चों. तो यहाँ पे फिर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से 12% हो जाएगा. 12% में बच्चों बहुत सारे लोगों को लोन परवड़ता नहीं है, तो दे विल स्टॉप टेकिंग लोन. लोन्स कम हो गए तो लोगों का खर्चा कम होता है, डिमांड कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम अंडर कंट्रोल. दैट इज व्हाई वी से दैट चिल्ड्रन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI is going to increase the
बैंक रेट. अच्छा, इट्स लाइक ना, इट्स अ सिचुएशन जहां पे बोरोइंग को हम लोग थोड़ा कॉस्टली कर सकते हो बच्चों लोग. ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू चेक द मनी सप्लाई इन द मार्केट. हाँ, लेकिन कभी बच्चों लोग अगर डिफ्लेशन दिखता है तो वहां पे फिर बैंक रेट को कम भी किया जा सकता है. तो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि कोई भी रेट हो बच्चों लोग, कोई भी रेट इन्फ्लेशन के टाइम पे उस रेट को बढ़ाया जाता है. याद रखोगे आप. तो बैंक रेट है उसको भी बढ़ाएंगे हम लोग. सो चिल्ड्रन, इट्स एक्चुअली लाइक दिस कि सपोज अगर बैंक रेट को बढ़ाया जाए तो बैंक रेट को बढ़ाने की वजह से मार्केट में चिल्ड्रन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से मार्केट में जो बच्चों लोग लोन्स फ्लो होते हैं ना, क्रेडिट, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा. अच्छा, और अगर क्रेडिट कम है तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन वन मोर थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज दैट डिमांड इज गोइंग टू डिक्रीज. और डिमांड डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल. ओके, so children, that's the first point, that's called as the bank rate. You can read it in detail sometimes. Okay, second वाला आता है children, what is called as the open market operations. So what is open market operation children? It basically involves central bank selling or purchasing some government securities in the market. Okay, again I'm just explaining it through an example children. ये टॉप पे अपना RBI. अच्छा, फिर उसके नीचे आते हैं बच्चों लोग लॉट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. और फिर ये अपनी नॉर्मल पब्लिक होते हैं ना बच्चों लोग. यहाँ पे दिस इज द एंटायर मनी मार्केट. नाउ आरबीआई बच्चों लोग बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक्स को, और फिर कमर्शियल बैंक्स आर गोइंग टू पंप दैट लिक्विडिटी इनटू द मार्केट. अच्छा, आरबीआई के पास दो अलग अलग हथियार होते हैं बच्चों लोग. एक, जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होगा तो मार्केट में महंगाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के पास आती है. अच्छा, उनके पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बेचेगी. जैसे कि किसी XYZ बैंक ने आरबीआई से 1000 करोड़ के सिक्योरिटीज खरीद लिए, तो कमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास गया, आरबीआई. अभी कमर्शियल बैंक कहां से पैसा उठाएगी, मार्केट से. तो ऑटोमेटिकली बच्चों लोग मार्केट से 1000 करोड़ रुपए कम होने वाला है. अच्छा, मार्केट से पैसा कम होगा तो लोगों का खर्चा करने का टेंडेंसी पोस्टपोन हो जाता है, बाद में खर्चा करेंगे, अभी तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आपने नोटिस किया आरबीआई ने सिक्योरिटीज को क्या किया है बच्चों लोग, सेल किया है और मार्केट के लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है. चिल्ड्रन, दैट इज बेसिकली डन इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. क्या के लिए किया जाता है बच्चों, इसको इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट. अच्छा, बट देयर कुड बी सम सिचुएशंस इन विच यू एक्चुअली रियलाइज दैट देयर इज लेस मनी इन द मार्केट, मतलब मार्केट में पैसा नहीं है. तो ऐसे सिचुएशंस में आरबीआई के पास दूसरा हथियार होता है, दैट इज कॉल्ड एज परचेसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अच्छा, इन द सेंस आरबीआई जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, बोलेगा कि देखो हमने तुमको सिक्योरिटी दिया था 1000 करोड़ का, वो सिक्योरिटी हमको दे दो और ये लो तुम्हारा 1000 करोड़ रुपए अलॉन्ग विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा, कमर्शियल बैंक क्या करती है, उसको मार्केट में फिर लोगों को फिर से लोन करके फॉरवर्ड करना चालू करेगी, या फिर जिनसे बोरो किया था उनका रीपेमेंट होता है, मार्केट में वापस से पैसा आता है चिल्ड्रन, और इकोनॉमी जो डिफ्लेशन में था, रिसेशन में था, वो वापस से थोड़ा बूम करता है. मतलब इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, और इफ देयर आर एनी चांसेस ऑफ रिसेशन चिल्ड्रन, एनी साइंस ऑफ रिसेशन, तो सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, परचेस किया जाता है. तो क्योंकि इसको ओपन मार्केट में बाइंग और सेलिंग किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो सेंट्रल बैंक विल reduce the quantity of money in circulation by the sale of securities and increase the quantity of money by purchasing them. तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज को क्या करने का, सेल and bring down the money circulation. So automatically aggregate demand for the economy is actually going to decrease here, we can say. That's called as open market operations. बच्चों लोग नेक्स्ट वाला जो हथियार होता है बैंक के पास, आरबीआई के पास, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो. उसमें दो चीजें आती है, एक को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, एंड चिल्ड्रन वी गॉट वन मोर व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो बच्चों लोग, ये किसी भी कमर्शियल बैंक को उनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आरबीआई के पास कैश में डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, CRR. अच्छा, इन सिमिलर वे
कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को इन्वेस्ट करना पड़ता है बच्चों लोग गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, और उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बच्चों लोग कभी भी इन्फ्लेशन आता है तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को बढ़ा देगी। अगर सीआरआर इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक को लोन देने के लिए कम अमाउंट रहेगा। बच्चों लोग कभी सपोज लाइक बाय चांसेस कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे रही है तो एसएलआर को बढ़ाया जाता है। इसका मतलब कमर्शियल बैंक विल हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक का बच्चों लोग जो लोन देने का कैपेसिटी होता है कम होता है, उनका लिक्विडिटी कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन रिसेशन आने पे ये सब रेट्स को कम भी किया जा सकता है चिल्ड्रन। सो वी आर जस्ट अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट चिल्ड्रन, वी कैन से। ओके, अगर हमने बच्चों लोग सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज, रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर will increase the reserve of the bank and consequently their ability to expand. तो इन्फ्लेशन के टाइम पे ये रेशियोज को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाता है बच्चों। So I think there are many banks children who have come up with different measures to control inflation. उसमें से एक आता है liquidity adjustment facility. Liquidity adjustment facility का मतलब वही होता है बच्चों लोग, we have got some things what are called like no, कोई भी रेट बच्चों लोग जहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन्स फॉरवर्ड करती है और उसका जब रेट्स को चेंज किया जाता है डेली बेसिस पे तो उसको हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। तो उसमें रेपो रेट भी आता है बच्चों लोग, रिवर्स रेपो होता है। रेपो मतलब क्या, फिर से वही कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करती है कुछ सिक्योरिटीज को गिरवी रखने का, फिर उनको प्रॉमिस करने का कि हम लोग उसको रीपर्चेस करेंगे, तो रीपर्चेस एग्रीमेंट को रेपो बोला जाता है। तो इसके जरिए बच्चों लोग आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी पंप करती है। कभी कभी कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा पड़ा रहता है तो वो लोग वो पैसा उठा के किसको देते हैं, आरबीआई को, और आरबीआई उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो। तो उसको मार्केट का लिक्विडिटी एब्सॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। सो इन्फ्लेशन या फिर रिसेशन वी कैन ऑलमोस्ट कंट्रोल बोथ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। अच्छा, नाउ दे ऑल्सो से दैट चिल्ड्रन के लाइक ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं दे माइट नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। जैसे कि अगर हम लोग प्राइसेस को बढ़ा रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इफ यू इंक्रीज प्राइसेस इट्स गोइंग टू ब्रिंग डाउन मोर प्रॉफिट्स टू द बिजनेस। अच्छा, एंड द प्रिवेलिंग ऑप्टिमिज्म विल नॉट डिटर बिजनेस फर्म्स फ्रॉम बोरोइंग एट अ हायर कॉस्ट। तो ज्यादा प्रॉफिट है तो फिर महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई के पास दो ही पॉलिसीज होते हैं, इधर डियर पॉलिसी और चीप पॉलिसी। डियर पॉलिसी मतलब चलो रेट्स को बढ़ाया जाता है और चीप पॉलिसी मतलब सब रेट्स को क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं। अच्छा, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे कौन सा पॉलिसी यूज करोगे आप, डियर पॉलिसी। रिसेशन रहेगा तो कौन सा पॉलिसी यूज करने का, चीप। याद रखना सब लोग, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड डियर पॉलिसी, एंड टू कंट्रोल रिसेशन और टू कम आउट ऑफ रिसेशन चिल्ड्रन वी हैव गॉट अ चीप मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, लेकिन फिर कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स भी यूज किए जाते हैं चिल्ड्रन, लाइक यू कुड हैव मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। आपको पता है चलो 1 लाख का अगर आपने कोई चीज गिरवी रखा तो आपको पूरा 1 लाख का लोन नहीं मिलता है, हो सकता है कि लेकिन उन्होंने आपको 80,000 दे दिया, मतलब यहाँ पे 20% का मार्जिन आ गया। अच्छा, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रहेगा ना चलो तो मार्जिन को बढ़ाया जाता है। अच्छा, कंज्यूमर क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, मतलब चलो पता है लाइक व्हेनेवर दे आर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ ईएमआई फैसिलिटी, अगर ईएमआई अवेलेबल होगा तो पता है चलो बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें परचेस करते हैं। वहीं पे चलो अगर ईएमआई अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पीपल विल कर्टेल देयर कंजम्पशन। अच्छा, डायरेक्टिव्स आते हैं चलो आरबीआई की तरफ से, इतनी बार या बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, आप अपने कार्ड से इतना ही पे कर सकते हो, या फिर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, तो जो क्रेडिट दिया जाता है चलो उसके ऊपर हम लोग कुछ रूल्स लाते हैं। तो दिस कुड बी सिलेक्टिव अप्रोचेस दैट वी हैव। और सिलेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेट होता है कि कौन कौन से एक्टिविटीज के ऊपर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं और कौन कौन से एक्टिविटीज को हम लोग कंट्रोल नहीं करना चाहते। ठीक है, सो इट्स लाइक एन एक्टिविटी चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सपांशन, मतलब थोड़ा कंट्रोल भी रहे और एक्सपांड भी करे अपना इकोनॉमी। ठीक है, सो मॉनेटरी मेजर्स सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ मॉनेटरी मेजर्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई चिल्ड्रन वी हैव टू मेक यूज ऑफ certain other measures as well children. Okay, acha, suppose for example ki have you just experienced children one method of controlling the inflation was through demonetization of higher denomination currencies.
मतलब जितने ज्यादा वैल्यू की करेंसी होते हैं बच्चों, जैसे 2000 का नोट वगैरह, उसको मार्केट से बंद कर देने का, मतलब ऑटोमेटिकली बच्चों लोग फिर बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सेस जो मनी होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हाँ, तो ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल की November 2016 we just wanted to reduce the black money in the market, children, and that is why we went for demonetization of almost all the currencies that we had and we came up with new currencies. Okay, अच्छा, तो ये होते हैं चलो monetary measures. अच्छा, then children we come across what are known as the fiscal measures. As I said children, fiscal measures are initiated by the government. कहां से आएंगे measures? गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसे कि आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सिर्फ मॉनेटरी अथॉरिटीज के हाथ में नहीं होता है, दिस शुड बी सपोर्टेड बाय द फिस्कल मेजर्स। जैसे कि गवर्नमेंट चिल्ड्रन बजट के जरिए प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक का जो खर्चा होता है उसको हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं, और एसेंशियल कमोडिटीज को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं देख लेते हैं। ये मेन पॉइंट्स आप याद रखना। गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा हथियार तो होता है चलो टैक्सेस का ना, तो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेवी किया जाएगा, इंपोज करते हैं, ताकि लोगों के पास खर्चा करने के लिए जो इनकम होता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, लेकिन फिर टैक्स को इंपोज करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कंट्रोल में रहे। जैसे कि लोगों को सेविंग करने का मन नहीं करेगा, क्यों, टैक्स लगता है। पीपल माइट नॉट फील लाइक इन्वेस्टिंग, people might not feel like going for production. Why? Because government is taxing all these things. And very very important children, government is not supposed to tax essential commodities, otherwise inflation is going to aggravate. Okay, तो टैक्सेस को बच्चों लोग आपने एक बात नोटिस की कि लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस को बढ़ाया जाता है ताकि पब्लिक का जो खर्चा करने वाला इनकम होता है उसको हम लोग क्या करें, कंट्रोल। जैसे बच्चों कि अगर मेरे को कहां से 10 लाख रुपए मिलते हैं, मैं पूरा 10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूं, लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट ने उसमें से 1 लाख रुपए टैक्स के जरिए ले लिया तो फिर मेरा खर्चा करने का कैपेसिटी सिर्फ 9 लाख पे बचता है ना। यस, देन चिल्ड्रन वी ऑल्सो हैव द पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग का मतलब क्या होता है? पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है, पब्लिक उसको खर्च करती जा रही है। अच्छा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से पैसा बोरो करती है, उनको थोड़ा लालच दिखाने का। क्या कि हम लोग, बैंक सबको कितना इंटरेस्ट देती है, 6%, हम लोग आपको 8% दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे दो पैसा। तो ऐसा कर करके मार्केट का पैसा बच्चों लोग गवर्नमेंट एब्सॉर्ब करती है, और गलती से भी बच्चों लोग इन्फ्लेशन के टाइम पे बोरो किया हुआ पैसा रीपे नहीं करना है। दिस वुड प्रिवेंट एडिशनल मनी सप्लाई एंड कॉन्सिक्वेंट एडिशनल डिमांड। हाँ, लेकिन रिसेशन अगर दिखेगा तो फिर ये पैसे को रीपे किया जा सकता है बच्चों लोग, ताकि लोग उसको खर्च कर सके, वापस से इकोनॉमी थोड़ा बूम में आता है। देन चिल्ड्रन वी हैव द कंपल्सरी सेविंग्स। इट्स लाइक फोर्स्ड सेविंग स्कीम। या फिर डिफर्ड पेमेंट ऑफ द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आपको पता है पीएफ, बच्चों हम लोग जब जॉब पे जाते लोग बोलते हैं ना कि कट वगैरह हो के हाथ में इतने सैलरी आता है, जो कट होता है क्या होता है बच्चों, पीएफ का पैसा। बच्चों अगर मैं 50,000 का सैलरी ले रहा हूं, उसमें से 5,000 मेरा पीएफ का कट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट मेरे से 5,000 का सेविंग्स करा रही है। तो दैट मीन्स दे आर नॉट अलाउिंग मी टू यूज दैट मनी करंटली, वो मुझे अब यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर वो इमेजिन करना बच्चों लोग, ऑलमोस्ट लाइक लाखों एम्प्लॉयज होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो ये सब लोगों की सैलरी से आपने अगर 2-2 हजार भी कट कर दिया तो फिर लाखों करोड़ों रुपए कम हो जाते हैं। तो इनडायरेक्टली आपने उतना पैसा कम कर दिया। और अगर खर्चा बढ़ता रहेगा तो आप पीएफ का लिमिट बढ़ा सकते हो, बोले कि 50,000 का सैलरी अभी 5,000 नहीं 7,000 रुपए कट होगा, उसको हम लोग सेव करके रखते हैं, आप जब रिटायर हो जाओगे तब मिलेगा, बाद में खर्च करना। तो आपको लेकिन पूछा नहीं जाता है, कंपल्सरी होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी सेविंग्स बोलते हैं उसको। एंड देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट दी पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे बच्चे लोग इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करती है थ्रू पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अच्छा, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, उल्टा उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग गवर्नमेंट एक आध प्रोजेक्ट पे जब पैसा खर्च करते हो, पैसा मार्केट में जाता है, लोगों के हाथ में आएगा, लोग खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो लोगों का इनकम कम होता है, तो मार्केट में एक्सपेंसेस कम होते हैं, डिमांड कम होता है, और इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस, राइट। तो गवर्नमेंट के पास ये 3 तरीके होते हैं चिल्ड्रन। वन इज टैक्सेस, द सेकेंड वन चिल्ड्रन इज कंपल्सरी सेविंग्स, और तीसरा आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो टैक्सेस को बढ़ाओ, पब्लिक से पैसा बोरो करो, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना है,
कम करना. And lastly children, we come through what is known as direct measures. अभी जहां तक डायरेक्ट मेजर्स की बात है यहाँ पे, तो डायरेक्ट मेजर्स में चिल्ड्रन कि लाइक गवर्नमेंट क्या क्या कर सकते हैं. देखो, प्राइस के ऊपर सीलिंग डाला जा सकता है कि लाइक इससे ज्यादा प्राइस नहीं होगा. गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मशीनरी चलता है बच्चों इसके लिए, दिस इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो जितने भी एसेंशियल, ये कुछ और नहीं बच्चों लोग, दिस इज समथिंग इन सिमिलर टर्म्स दैट वी हैव ऑलरेडी हर्ड, व्हाट इज नोन एज रेशन शॉप्स. उसी को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा मानते हैं. तो जो चीजें होती है जो लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है बच्चों लोग, हाँ, तो वो सब रेशन शॉप्स के जरिए प्रोवाइड की जाती है. या फिर कुछ चीजों के प्राइसेस को हम लोग क्या रेशनिंग कर सकते हैं ना, कि रास्त भाव धान्य दुकान, मतलब उससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं करेगा. अच्छा बच्चों लोग, ऑनियंस वगैरह बहुत कॉस्टली होते हैं, तो ऑनियंस को गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर के कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसका सप्लाई हम लोग बढ़ा सकते हैं. तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाए. फिर कभी कभी बच्चों लोग जानबूझ के वर्कर्स के पगार को, प्रॉफिट्स को, डिविडेंड्स को, बोनस को फ्रीज किया जाता. आपने देखा रहेगा बहुत सारी सिचुएशंस में गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज का सैलरी डिले करती रहती. अगर बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं तो 50 लाख के आसपास वर्कर्स है, उनके सैलरी को आपने एक महीने में भी होल्ड में रखा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों लोग कि उनका खर्चा उतना एक महीने से डिले हो जाता है. सो दे आर रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट. ठीक है, सो दे कैन हेल्प to control inflation, but children at the same time they can raise what is known as social and political tension. क्योंकि लोग आंदोलन करेंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टीज का ऑपोजिशन वाले उतरते हैं मैदान में, राइट. अच्छा, एंड देन देयर इज वन मोर सॉल्यूशन दैट वी हैव चिल्ड्रन, दैट इज एक्चुअली नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई को बढ़ाया जाता है. सप्लाई को बढ़ाने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे कि अगर ऑनियंस के प्राइसेस बढ़ गए तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑनियंस इन द मार्केट ना. अच्छा बोले सर, लेकिन कैसे सप्लाई बढ़ाने का, हाँ, तो सप्लाई चेन को थोड़ा हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फार्मर्स को इंसेंटिव्स देने का बच्चों ऑनियन को प्रोड्यूस करने के लिए. अच्छा, एंड इट कैन इन्वॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, एंड दे कैन एनेबल व्हाट इज नोन एज मोर प्रोडक्शन चिल्ड्रन. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस वन थिंग चिल्ड्रन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सेशन. Now we all know like inflation is going to affect almost like all the people in our society. Different sections were like wage earners, salary earners, fixed income groups होते हैं, तो they need to be protected against inflation. So indexation according to Samuelson and Norders is a mechanism of wages, prices and contracts that are partially or wholly compensated for changes in the general price level. मतलब चलो क्या होता है कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कभी कभी आपने देखा है लोगों को सैलरी में, बच्चों लोग आपने एक वर्ड कभी सुना रहेगा, आपको अगर सैलरी स्लिप आता रहेगा तो उसमें ऐसे कुछ लिखा रहता है, डियरनेस अलाउंस. क्या लिखा रहेगा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बोलते हैं उसको. तो बच्चों लोग आपकी सैलरी को थोड़ा बढ़ाया जाता है, क्यों, मार्केट में इन्फ्लेशन है इसलिए आपका थोड़ा सैलरी बढ़ाया गया ताकि यू विल बी एबल टू कोप अप विद द इंक्रीज प्राइसेस इन द मार्केट. तो यहाँ पे यू फाइंड दैट वर्ड चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस. So that is the compensation that is given against inflation. अच्छा, and very important children कि like inflation जब तक moderate रहता है ना तभी उसको हम लोग अच्छे से कंट्रोल करें. अच्छा, attempts to control inflation by any particular type of measures are bound to fail. तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही मेथड को लेके अगर कंट्रोल करने के लिए जाओगे इन्फ्लेशन तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. तो हम लोग कुछ अलग अलग मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि आरबीआई ने डियर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए. अच्छा, गवर्नमेंट ने सरप्लस बजट अपनाया. सरप्लस बजट मतलब टैक्सेस बढ़ा के, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने और कुछ डायरेक्ट मेजर्स भी ला दिए. तो कंबाइन में चलो दिस थिंग्स आर गोइंग टू शो सम पॉजिटिव रिजल्ट्स वी कैन से. सो दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली कंट्रोल इन्फ्लेशन चिल्ड्रन. ओके, सो आप बोलोगे सर कि लाइक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, एक छोटा सा आप आंसर तैयार करके रख सकते हो चिल्ड्रन. यू कैन टेक इट लाइक दिस ना, कंट्रोल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिर आप उसका एक चार्ट बना सकते हो, मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स और डायरेक्ट मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स में आप क्या लिखोगे, आरबीआई के मेजर्स ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ा हमने, वी स्टडी अबाउट बैंक रेट. अच्छा, वी आल्सो सॉ अबाउट द वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड देन वी हैव दोस ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अच्छा, फिर क्वालिटेटिव में क्या था, सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट टूल्स होते हैं बच्चों लोग.
अलॉन्ग विद द रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिजिकल मेजर्स में 3 आते हैं, टैक्सेस को बढ़ाने का, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करने का और पब्लिक से पैसा बोरो करने का। अच्छा, तीसरा होता है डायरेक्ट मेजर्स, तो वहां पे आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंक्रीज इन सप्लाई, अच्छा इंपोर्ट्स, ये सब पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, तो इसको पढ़ के रखना। चिल्ड्रन, फ्रॉम ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन का चैप्टर नंबर 16 और 17 इसको जबरदस्ती अलग किया गया, पहले एक ही चैप्टर में आता था। ये अगर आप पढ़ के जाओगे तो ऑलमोस्ट लाइक 25 मार्क्स आपको मिलने का गारंटी हो जाता है। तो you better study and keep it nicely, children. Okay, so that's all about a portion that we have, children. Almost like 17 different chapters that we can study, but for your reasonable understanding I have taught you 15 chapters from your third semester. Okay, and I think that will be more than enough. You want to score nice marks. You cannot only pass, children, if you study these chapters, you can score better marks, children. Okay, in the coming lectures I will be guiding you how to prepare for the exams. Now we are not quite aware कि like what university is coming up, like what pattern they are going to bring up, MCQs आएंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर आते हैं। ऑनलाइन में चलो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लेना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक MCQs, और अगर MCQs आते हैं तो आप आसानी से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।